Hello guys, namaste and welcome to day one review of second England versus India test being played at Edgbaston, Birmingham. Talking about India's record at Edgbaston, it has been a very disappointing one. India has played 8 matches there and they haven't managed to win a single match. They have drew once and have lost 7 times. Talking about the last time India played there, it was a very enthralling match. England chased down the target of 378 with the help of Joe Root, the then captain, who played an astonishing inning. He scored 142 or 145 runs, and it was an amazing test match to see. Coming back to today's test match, it was obvious from obvious for everyone who follows cricket that we would see changes in India's 11, and that we saw. Talking about England's 11, it was the same 11 for England that they had in the first match. So, yeah, they have kept it simple. Why change the winning combination? And I feel that's the right choice. Talking about India, India have made 3 changes. Sai Sudarshan has been dropped and he's been replaced by Nitish Kumar Reddy. And Karun Nair will be batting at 3. Shardul Thakur has been dropped and he has been replaced by Washington Sundar, and Bumrah has been dropped, who has been replaced by Akashdeep. And yeah, let's talk about it. Let's look at India's 11. So KL Rahul and Yashasvi Jaiswal will be at 1 and 2. Karun Nair has been promoted to number 3. Shubman Gill at 4. Rishabh Pant at 5. Reddy will be batting at 6. Uh, he will be followed by Ravindra Jadeja, Washington Sundar, and then our 3 fast bowlers, Akashdeep, Mohammad Siraj, and Prasidh Krishna. So let's talk about what I feel about Bumrah being left out. I just feel one thing: if he was fit, he should have played. Simple as that, because he has been a most potent bowler in Sena countries, and यार अगर वो फिट है तो उसको खिलाओ. सिंपल सी बात है. आपको अपने आप को बेस्ट चांस देना ही है. You have to give yourself the best chance because you are already 1-0 down. You can't be hoping कि बुमराह को फिर से रेस्ट करेंगे. What if India goes lose this match as well? Then बुमराह आपका next 3 मैच तो खेलेगा नहीं obviously. So I just feel कि अगर बुमराह फिट था तो he should have been playing. Talking about what went on in the match, so England won the toss. They elected to bowl first and हमको पता ही है कि इंग्लैंड को चेस करना बहुत अच्छा लगता है. दे प्रेफर चेजिंग डाउन टारगेट्स. जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में कि एजबेस्टन में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. लास्ट टाइम वो 378 रन चेज किए थे एंड इस बार भी दे हैव डिसाइडेड टू चेज. सो लेट्स लुक एट हाउ इंडियाज इनिंग्स वेंट. केएल राहुल was dismissed early by Chris Wokes. He was looking okay, but yeah, it happens. Yashasvi Jaiswal scored his 11th Test 50. He was batting beautifully and बहुत गंदा एक रैश शॉट मार के आउट हुए अगेंस्ट बेन स्टोक्स, एंड ही वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वाज सेट टू स्कोर 100. एज एन इंडियन फैन वी वर ऑल होपिंग कि वो 100 मारेंगे, बट एक बहुत रैश शॉट खेले अकॉर्डिंग टू मी. बट या, थिंग्स हैपन. टॉकिंग अबाउट करुण नायर, I don't know, people may have a different opinion, but जब तक वो बैटिंग कर रहे थे he was looking very composed to me, and that's a positive sign for India. That's a positive sign for him because वो बहुत अच्छी बैटिंग किए थे. बीच में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइव्स लगाई थी. सो इट वॉज फाइनली लुकिंग लाइक कि करुण नायर इज बैक इन टू हिज ग्रूव. बट लंच के पहले जस्ट उनको ब्राइडन कास की एक बहुत अच्छी डिलीवरी थी जिसमें वो आउट हुए. सो लंच के पहले ब्राइडन कास ने उनको आउट कर दिया. देन केम आवर कैप्टन शुभमन गिल, हु हैज स्कोर्ड येट अनदर 100. दिस इज ओनली हिज थर्ड इनिंग्स एज अ टेस्ट कैप्टन, एंड अपनी तीसरी इनिंग में वो 2 बार सेंचुरीज मार चुके हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. ही इज प्रूविंग मी रॉन्ग एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो एज अ बैटिंग कैप्टन ही हैज़ डन वेरी वेल, बट इट इज़ येट टू बी सीन कि जब वो फील्ड में आते हैं तो वो उनकी कैप्टनसी कैसी रहती है. क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था व्हेन इंडिया वो फील्डिंग, तब उनकी कैप्टनसी उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थी. बट या, ही इज़ यंग एंड ही विल लर्न. ऋषभ पंत आज जल्दी आउट हो गए. ही वॉज गोइंग डाउन द ग्राउंड अगेंस्ट शोएब बशीर एंड ही वॉज कॉट ब्रिलियंटली बाय जैक क्रॉली. जैक क्रॉली बहुत टॉल है एंड
या ऋषभ पंत उनको क्लियर नहीं कर पाए एंड ही वाज कॉट एट लॉन्ग ऑन. देन केम नीतीश रेड्डी. लास्ट टाइम आई थिंक सो इनका जो लास्ट ओवर था फॉर इंडिया इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेरे को याद है इन्होंने मेलबर्न में बहुत अच्छा 100 मारा था. सो ठीक है, ऑब्वियस चॉइस था कि अगर शार्दुल ठाकुर परफॉर्म नहीं करते हैं देन नीतीश रेड्डी एक उनके प्रॉपर ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट है एंड ही वॉज ब्रॉट इन. बट एक मैं बोलना नहीं चाह रहा कि ख़राब डिलीवरी थी बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. बट नीतीश रेड्डी की तरफ से बहुत ख़राब जजमेंट रहा एंड ही शुड हैव प्लेड दैट डिलीवरी. क्रिस वोक्स ने डाली थी वो बॉल एंड द बॉल जस्ट पिच्ड एंड निप्ड इन एंड हिट द टॉप ऑफ स्टंप. सो according to me, Nitish Reddy should have played that ball, could have played that ball, but who am I again? So yeah, he was dismissed early. Then came Ravindra Jadeja, who has improved a lot. Let me point this out. Ki I was one of the critics who was criticizing India's lower order batting. I was criticizing Ravindra Jadeja क्योंकि वो last जो मैच हुआ था उसमें दोनों इनिंग में कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर नहीं पाए थे. बट दिस टाइम अराउंड ही हैज़ ऑल्सो बैटेड वेरी कॉन्फिडेंटली. ही एंड उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं एंड सिंगल डबल शुरुआत से ले रहे हैं. एंड शुभमन गिल का बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड एज एन इंडियन फैन आई एम होपिंग कि कल भी वो शुभमन गिल को और अच्छे से सपोर्ट दे पाए एंड इंडिया क्रॉसेस 400 रन मार्क. बिकॉज इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिर से 400 रन मारे ताकि वो अपने बॉलर को बेस्ट चांस दे सके कि अगर हम इंग्लैंड को 250 और इवन इफ 300 में भी रोक लेते हैं तो हम एटलीस्ट 100 रन की लीड लेके हम आगे जा सकते हैं इस मैच में. टॉकिंग अबाउट की पार्टनरशिप्स जो हमको देखने को मिली वो थी फर्स्ट थी यशस्वी जायसवाल एंड करुण नायर के बीच फॉर द 4th विकेट जो थी 80 रन की पार्टनरशिप ऑफ 90 डिलीवरीज. सो बहुत अच्छी बैटिंग करी थी दोनों ने साथ में. आफ्टर करुण नायर वॉज dismissed, it was the captain Shubman Gill who joined Yashasvi Jaiswal and they had a partnership of 66 runs of 131 deliveries. After Yashasvi Jaiswal was dismissed, it was Rishabh Pant, the vice captain and the captain, who carried the Indian ship forward and their partnership was for 47 runs of 90 deliveries. And after two quick wickets of Pant and Nitish Reddy, it was Sir Jadeja who accompanied our captain Shubman Gill and they are currently batting and their partnership has now scored 99 runs of 142 deliveries. Let's hope कि कल भी जडेजा एंड शुभमन गिल अच्छे से बैटिंग करे, इंडिया 400 रन क्रॉस करे अगेन. एंड दिस टाइम अराउंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर एंड आई बिलीव इन दिस वेरी स्ट्रांगली कि आप कोई भी सेना नेशंस में जाओ, अगर आप मैच में 20 विकेट्स नहीं ले रहे हैं देन यू आर नॉट विनिंग द मैच. या हो सकता है कि आप एक आधा मैच जीत जाएं बट अगर आपको सीरीज जीतना है देन यू नीड टू पिक 20 wickets in each and every match to give yourself the better chance. And even then maybe conditions के कारण आप चीज़ आपके तरफ ना जाए but you have to pick 20 wickets. And let's see कल इंडिया कितने रन मारती है. bowling needs to be up to the mark because बुमराह नहीं है. I don't know कि कैसे जाएगा. I'm expecting a lot from मोहम्मद सिराज and प्रसिद्ध कृष्णा. I'm sure उन्होंने जो पिछले मैच में जो गलती हुई थी उसके बारे में बात करी होगी, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया होगा एंड आई एम होपिंग टू सी दैट इम्प्रूवमेंट इन दिस मैच एंड इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ फर्स्ट इनिंग दैट इंग्लैंड विल प्ले. सॉरी. सो या प्लीज़ गाइज आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से कितना इंडिया स्कोर कर सकती है इन द फर्स्ट इनिंग. हु विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच, हु इज़ अ की बॉलर, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा. एंड या लेट्स होप कि इंडिया का डे 2 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहे एंड इंडिया ये वाला मैच जीते ताकि व्हेन बुमराह कम्स बैक इनटू द टीम फॉर द लॉर्ड्स टेस्ट तो इंडिया वहाँ से फिर एक सीरीज़ में बहुत अच्छा मोमेंटम लेके आगे बढ़ सके. थैंक यू सो मच.